सभी को नमस्कार। हिमाचल कला भाषा संस्कृति अकादमी हिमाचल प्रदेश सरकार आप सभी सुधी दर्शकों का हृदय से स्वागत करता है। आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, विशेष करके व्यक्तिगत रूप में मैं और मेरा परिवार हिमाचल कला भाषा संस्कृति अकादमी कि हमारे बीच ऐसे फनकार, ऐसे अभिनेता, ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्हें अनेक नामों से जाना जाता है सिने जगत में। और हमारे बीच आज मुख्य अतिथि के रूप में, मुख्य वक्ता के रूप में इस कार्यक्रम में हैं अखिलेंद्र मिश्र जी। अखिलेंद्र मिश्र जी का एक लंबा अनुभव रहा है अभिनय के क्षेत्र में, साहित्य, संस्कृति और सिनेमा के क्षेत्र में। लगभग 37 वर्षों से अखिलेंद्र जी अपनी इस यात्रा में एक साधक के रूप में चले हैं, अनवरत चले हैं। कौन नहीं जानता अखिलेंद्र जी को। चंद्रकांता में जब आते थे तो इनका किरदार और इनका दमदार किरदार क्रूर सिंह, और जिसमें इनका संवाद रहता था, वो हम इन्हीं के मुखारविंद से सुनेंगे। आज हम कार्यक्रम को शुरू करने से पहले अखिलेंद्र जी का स्वागत करते हैं माननीय सम्माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री जयराम ठाकुर जी के माध्यम से, भाषा संस्कृति मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर जी के माध्यम से, और पूरा दर्शक परिवार जो हिमाचल प्रदेश आपको सुन रहा है। अखिलेंद्र सर, आपको हम हृदय से आभार, अभिनंदन, अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। पूरा हिमाचल प्रदेश प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। पूरे हिमाचल प्रदेश को प्रणाम करता हूँ, मंत्री जी को प्रणाम करता हूँ, मुख्यमंत्री जी को प्रणाम करता हूँ, भाषा कला अकादमी को प्रणाम करता हूँ, जितने लोग जुड़े हुए हैं सबको प्रणाम करता हूँ। बहुत सुंदर। अब हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि अखिलेंद्र जी का सफर कैसा रहा है। एक नजर अखिलेंद्र जी का सफर आप लोगों के सामने। Unforgettable Kroor Singh, actor Akhilendra Mishra. Kroor Singh's Yak, which became Yaku from television series Chandrakanta. His big, expressive eyes and villainous presence cannot be ignored. He explored the sound of Yak in different expressions while performing in the serial. It was actually Yak used in 9 rasas like Hasya Ras, Raudra Ras, and many more. Kids later made it Yaku. Let's know more about this amazing actor. Akhilendra Mishra was born in Siwan, Bihar on 28 March 1962. He was born into a Brahmin family, and for schooling he went to Gurukul. His father was an officer in customs. The actor spent around 5 years in Gurukul. He did his matriculation from Chhapra Zilla School and did BSc Physics Honours from Rajendra Chhapra College. In his village, he used to perform Hindi and Bhojpuri plays. He did 2 plays during the Shera holidays every year. Gauna Ki Raat, a play based on child marriage, was his first Bhojpuri play. He enjoyed performing plays on stage. Later, he became a part of Amateur Dramatic Association in Chhapra. He gave a lot of importance to language while performing, especially towards Hindi and Sanskrit. But he was doing theatre as an amateur. He wanted to take it further, which was difficult in his times, that is during 80s. He successfully talked to his mother and tried to convince his father through her. Finally, he joined IPTA and his training as an actor started from there. That is the time when he learned everything professionally. He also got to know that he can learn more about theatre, plays, and acting through books. Everything was professional, and he learned everything in a new way. Basically, everything from the beginning, right from scratch. He worked with Ekjut Theatre Group and got to work with many actors. He had pledged that he will be an actor of level, that he can see a dialogue in front of a legend like Amitabh Bachchan. He started his acting career with television series like Uran and Chandrakanta in the year 1990 and 1995 respectively.
He was seen in many Bollywood films like Veer Gati, Sarfarosh, The Legend of Bhagat Singh, Lagan, Ganga Jal, Halchal, Fida, Veer Zara, Delhi 6, Do Duni 4, Reddy, and many more. Though he is mostly known for his villainous roles, but the fact is, he has played characters with positive and comic shades also. He has won many film and television awards. He played the role of Ramar in 2008 television serial Ramayan and was also seen in television series like Devon Ke Dev Mahadev, Diya Aur Baati Hum, 2013 Mahabharat, Tu Mera Hero, and Khatmale Ishq. Akhilendra Mishra worked very hard throughout and ensured his presence can never be ignored. He is an unforgettable actor. अल्ट्रा के सौजन्य से अखिलेंद्र भाई साहब का ये पूरा सफर एक छोटे से अंश में हमने दिखाने का प्रयत्न किया। अखिलेंद्र मिश्र जी के बारे में हम कहना चाहेंगे, कदम चूम लेती है खुदा के मंजिल यदि मुसाफिर हिम्मत ना हारे। और एक वाकया और भी मुझे याद आ रहा है कि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कांटों से गुजरते हैं, ना समझ ही सदा कांटों के डर से फूलों को मसलते हैं। आज हमारे बीच मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि के रूप में इस कला भाषा संस्कृति अकादमी के फेसबुक पेज पर सीधे हैं अखिलेंद्र मिश्र जी, और इनका विषय रहेगा सिनेमा, साहित्य और संस्कृति। और आप क्यों नहीं जानते दर्शकों कि अर्जुन लोहार लगान के किरदार को, डीएसपी भूरेलाल गंगाजल के जिस दमदार किरदार को, और उसके बाद इंडियन 2 जो फिल्म आ रही है कमल हसन जी के साथ, उसे कैसे नहीं जान सकते। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, टिक्का सेठ हो, मिर्ची सेठ हो, तो ये ऐसे बहुत सारे किरदारों से हम इन्हें जानते हैं। विशेष करके 2008 की जो सागर साहब द्वारा निर्देशित रामायण, उसके किरदार रावण के रूप में ऐसे हमारे बीच में है अखिलेंद्र दा। आज इन्हीं के साथ हम रूबरू होते हैं। अखिलेंद्र दा, आपका स्वागत है हिमाचल प्रदेश में भाषा संस्कृति अकादमी में। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अब हम सीधा आपकी तरफ आते हैं कि साहित्य, संस्कृति और सिनेमा, इस पे आप प्रकाश डालेंगे, और जो हमारे श्रोता, बहुत सारे दर्शक आपको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहते हैं अखिलेंद्र मिश्र जी? साहित्य, सिनेमा और संस्कृति बहुत अहम विषय है। सिर्फ चर्चा का ही विषय नहीं है, चिंतनीय विषय भी है, मननीय विषय भी है। ये समाज के उत्थान का विषय है। ये इस विषय को यूं ही चर्चा कर नहीं छोड़ा जा सकता। बहुत बढ़िया। लेकिन मैं आभारी हूं भाषा कला अकादमी हिमाचल प्रदेश का, जिन्होंने इस तरह का विषय चुना और मुझसे कहा कि मैं कुछ इस पर अपना वक्तव्य दूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जी, भोले बाबा का आवाहन कर लेते हैं। भोले बाबा का आवाहन कर लेते हैं। जडाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गलयवलंबे लंबितां भुजंग तंग मालिकां डमट 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 डमन निनाद वड्डमर्मयम् चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम्। ओम नमः शिवाय। शिवाय अर्पणमस्तु। भगवान शिव के डमरू से निकले 14 सूत्र, और उन 14 सूत्रों से निकली सारी भाषाएं, सारी कलाएं, सारी विद्याएं, सारी विधाएं। और उसी में से एक विधा नाटक, और नाटक का तकनीकी विस्तार सिनेमा। बहुत खूब। नाटक और सिनेमा में जो फर्क है
नाटक का तकनीकी विस्तार सिनेमा है, जी। ये जानना होगा। बहुत खूब। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाली विधा सिनेमा। जब कैमरामैन कैमरे में आंख डालता है तो काला चद्दर ओढ़ के अंधेरा कर लेता है और कैमरे में वो प्रकाश देखता है। जब आप सिनेमा हॉल में जाते हैं सिनेमा देखने, तो सारी बत्तियां बुझा दी जाती हैं, अंधेरा कर दिया जाता है और आप प्रकाश का दर्शन करते हैं पर्दे पर। जी मिश्र जी। ये विधा है सिनेमा। दो यथार्थों का मिलन है सिनेमा। क्या बात। एक यथार्थ वो जो सिनेमा देख रहे हैं, उसकी कहानी में उस कहानी का जो चरित्र है उसका एक यथार्थ, और दूसरा यथार्थ जो दर्शक सिनेमा देखने सिनेमा हॉल में गया है उसका एक यथार्थ। इन दोनों यथार्थों का मिलन सिनेमा है। बहुत बढ़िया। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जी। मान लीजिए आप लगान देख रहे हैं। जी। अंग्रेजों का जमाना है, लेकिन आज का जो दर्शक बैठा हुआ है लगान देखने, मोदी का जमाना है। दो अलग अलग यथार्थ। भुवन और गौरी का प्रेम प्रसंग चल रहा है पर्दे पर, लेकिन दर्शक अपनी पत्नी से झगड़ के आया है। क्या बात है। ये दो अलग अलग यथार्थ होते हैं, और इन दोनों यथार्थों का जो मिलन है वो सिनेमा से होता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सिनेमा एक आध्यात्मिक यात्रा है, ऐसे नहीं है। जी। चलिए अब चलते हैं जड़ में। जड़ में पानी जी। डालते हैं। किसी भी चीज का इस सृष्टि में संवर्धन करना हो तो जड़ में पानी देना आवश्यक है। सही। 1898 में फ्रांस में लूमियर ब्रदर्स ने सिनेमा शुरू की। विश्व सिनेमा की शुरुआत हुई। भारतीय सिनेमा लगभग 15 साल के बाद 1913 में शुरू हुई। दादा साहब फाल्के जी ने शुरू किया और उन्होंने फिल्म बनाई राजा हरिश्चंद्र। वहां से भारतीय सिनेमा की शुरुआत मानी जाती है और है भी। तो विश्व सिनेमा और भारतीय सिनेमा में ज्यादा फर्क नहीं है। बहुत खूब, सुंदर। अब दादा साहब फाल्के ने फिल्म तो बनाई पहली, जी। और मूक फिल्म बनाई। कारण क्या था? दादा साहब फाल्के जब छोटी नौकरी करते थे, बहुत बड़े घर के भी नहीं थे। कारण क्या था कि वो सिनेमा की तरफ मुखातिब हुए, सिनेमा से आकर्षित हुए और उन्होंने सिनेमा बनाई जो भारतीय सिनेमा की पहली फिल्म थी, राजा हरिश्चंद्र। कारण क्या था? 1910 में दादा साहब फाल्के ने एक फिल्म देखी, लाइफ ऑफ क्राइस्ट। जी। लाइफ ऑफ क्राइस्ट जब देखी उन्होंने, तो उनके मस्तिष्क में, उनके मन में एक विचार अंकुरित हुआ कि ये अपने देवी देवता को दिखा सकते हैं सिनेमा के पर्दे पर, तो हम अपनी देवी देवता को, अपने महापुरुषों को क्यों नहीं दिखा सकते सिनेमा के माध्यम से पर्दे पर। और उन्होंने नौकरी छोड़ दी और वो लंदन चले गए।
वहां जाकर तकनीकी सीखी उन्होंने, फोटोग्राफी एडिटिंग सब सीखी, एक कैमरा भी खरीद लाया है। और उन्होंने, दादा साहब फाल्के ने फिल्म बनाई राजा हरिश्चंद्र। उनकी पत्नी खाना बनाती थी पूरी यूनिट के लिए, जितने लोग काम करते थे उनकी पत्नी ही खाना बनाती थी। पैसे थोड़े ही थे, लेकिन चूंकि एक जुनून था, एक आध्यात्मिक यात्रा पे उतरे थे, वहां से शुरू हुए थे। वहां से फिल्म की शुरुआत हुई। अब गौर करने वाली बात है कि भारतीय सिनेमा की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र जी, और हॉलीवुड की पहली फिल्म द ग्रेट ट्रेन रॉबरी, रेलगाड़ी की महान डकैती। इन दोनों फिल्मों को देखिए, इनके नाम से ही आपको मानसिकता का पता चलता है कि पश्चिम में क्या मानसिकता थी। फिल्म बनाई उन्होंने द ग्रेट ट्रेन रॉबरी, और हमारे यहां जो फिल्म मेकर दादा साहब फाल्के ने फिल्म बनाई राजा हरिश्चंद्र। क्या मानसिकता थी हमारे भारतवर्ष में, क्या पुरुषार्थ था, क्या चरित्र था, क्या व्यक्तित्व था, क्या आचरण था, क्या विचार था, क्या संस्कार था। बहुत सुंदर। और भारतीय सिनेमा की शुरुआत हुई। मुख फिल्म थी, लोगों ने बहुत पसंद की, लोगों ने देखी, वहां से कई मुख फिल्में बनी। 1920 से 30 के बीच में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की 3 रचनाओं पे भी फिल्म बनी। 22 में, 26 में और 30 में 3 रचनाओं पे। और वो चाहते थे मेरी और रचनाओं पे भी फिल्म बने। वो बहुत आकर्षित थे सिनेमा को लेकर। जी, एक तो रचना उनकी थी, उसको वो मुझे याद नहीं आ रहा है, वो चाहते थे खुद ही बनाना, खुद डायरेक्ट करना। पता नहीं डायरेक्ट किया कि नहीं उन्होंने, लेकिन वो फिल्म बनी। और बाद में उन्होंने कहा कि मैं संतुष्ट नहीं हूं इस फिल्म से, क्योंकि मैंने जो लिखा है वैसी ये फिल्म नहीं बनी है। तो साहित्यकारों के साथ ये भी होता था। उस जमाने में 3 पत्रिकाएं भी शुरू हुई, सुधा, चांद और माधुरी। चांद बहुत पॉपुलर थी उस जमाने में, 15,000 प्रतियां बिकती थी। सिनेमा के भी लेख उसमें लिखे जाते थे। सिनेमा में पैसे आना शुरू हो गया था। जी, सिनेमा का प्रभाव देखकर बाल गंगाधर तिलक ने भी दादा साहब फाल्के से कहा कि ऐसा क्यों नहीं सिनेमा बनाते जिसमें हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो हैं, जो क्रांतिकारी हैं, उनको भी दिखाया जा सके, तो कुछ लोग और अवेयर होंगे। दादा साहब फाल्के ने न जाने क्या कारण था, उन्होंने मना कर दिया साफ। अब क्यों मना किया ये पता नहीं है, लेकिन उन्होंने मना किया था कि नहीं, ये सिनेमा है, इसको सिनेमा ही रहने दीजिए। मतलब उन्होंने सिनेमा को देश से बड़ा समझा। अब आते हैं 1920 से 1947 तक का जो काल था। बहुत खूब। उस काल में साहित्यकारों का जो उदय था वो बहुत कमाल था। पत्र पत्रिकाओं का बहुत कमाल चलन था। सिनेमा में पैसे आने लगे थे। साहित्यकार, क्योंकि साहित्यकारों के पास कभी पैसा नहीं होता, आज भी वही हालत है, उस जमाने में भी वही हालत था, तो पैसे के लिए थोड़ा सिनेमा के प्रति आकर्षित हुए। जी। और तो और उस समय के सबसे बड़े और आज के भी सबसे बड़े हमारे हिंदी साहित्य के साहित्यकार, मठाधीश, सम्राट, प्रणाम करता हूं, मुंशी प्रेमचंद जी भी बंबई का रुख कर दिया उन्होंने सिनेमा जगत के लिए। जी। आज का मुंबई, तब का बंबई।
बिल्कुल। 1934 में उन्होंने एक फिल्म लिखी, अजंता मूवीटोन के साथ मिलकर उन्होंने एक फिल्म बनाई। अजंता मूवीटोन ने प्रोड्यूस किया, इन्होंने उस फिल्म को लिखी, मिल मजदूर। देखिए, सुनने वाली बात है। जी जी। हिंदुस्तान का इतना बड़ा साहित्यकार, उन्होंने एक फिल्म लिखी, मिल मजदूर। फिल्म का यह प्रभाव था कि उस समय मुंबई जो था वो टेक्सटाइल का हब था। यहां टेक्सटाइल की फैक्ट्रियां ही फैक्ट्रियां थे, मिल ही मिल थे। फिल्म देखने के बाद मिल मजदूरों ने स्ट्राइक कर दिया, हड़ताल पे चले गए, इतना प्रभाव था जी। अब मिल के मालिकों का जो संगठन था, उस संगठन के जो अध्यक्ष थे वो सेंसर बोर्ड के भी मेंबर थे। उन्होंने जब सिनेमा का असर देखा अपने मजदूरों पर, तो मिल मजदूर सिनेमा को पर्दे से उतार दिया गया। अजंता मूवीटोन का बहुत नुकसान हुआ, काफी काट छांट किया गया। दोबारा फिल्म रिलीज की गई, दोबारा फिल्म सेठ की बेटी के नाम से रिलीज हुई, फिर दोबारा भी फिल्म को उतार दिया गया। क्योंकि सिनेमा था, पैसा लगा हुआ था, मरता क्या नहीं करता। अजंता मूवीटोन ने फिर से दया की बेटी नाम से उस फिल्म को रिलीज की। फिल्म खैर कुछ नहीं किया फिल्म ने, फिल्म फिर उतर गई। अजंता मूवीटोन ने बोरिया बिस्तर बांध लिया। मुंशी प्रेमचंद ने अपने दोस्त को एक चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि सिनेमा का व्यापार शराब के व्यापार की तरह है। बहुत खूब। यहां भी व्यापारी जो चाहते हैं वही होता है, जो दिखाना चाहते हैं वही होता है, जो बनाना चाहते हैं वही होता है, और वही बनता है जी। यहां वही अश्लीलता है, वही चुंबन है, वही नग्नता है, वही स्त्रियों पे अत्याचार है। ये उन्होंने अपने मित्र को ये चिट्ठी लिखी प्रयागराज में। अच्छा। और 35 में वापस चले गए दुखी होकर। मुंशी जी की एक ही फिल्म है भारतीय सिनेमा उद्योग में जो उन्होंने लिखी, मिल मजदूर। और जब वहां गए तो उस समय का वहां का बहुत ही प्रचलित पत्रिका थी लेखक। लेखक ने, मुंशी जी ने एक बहुत ही प्रसिद्ध लेख लिखा, साहित्य और सिनेमा। शीर्षक था साहित्य और सिनेमा। और उसमें उन्होंने लिखा कि साहित्य का काम है सौंदर्य को स्थापित करना, उसकी उपासना करना, और सिनेमा का काम है मुनाफा कमाना। मुंशी जी ने तब ये बात लिख दी थी अपने लेख में, साहित्य और सिनेमा के लेख में। पत्रिका का नाम लेखक, सन 1935। और वो इलाहाबाद जा चुके थे जी। बहुत दुखी थे। लेकिन उन्होंने एक बात और कही थी कि जिस दिन सिनेमा और साहित्य का मिलन हो गया, ये देश बदल जाएगा। बहुत खूब, स्वागत है, बहुत सुंदर। संस्कृति का जो उद्गार होगा, जो उद्गम होगा, जो उत्कृष्ट स्वरूप होगा भारतीय संस्कृति और सभ्यता और भाषा की, परंपराओं की, जो विस्तार होगा, वो कह नहीं सकते। उन्होंने ये कहा कि जिस दिन सिनेमा और साहित्य का मिलन हो जाए जी। और 36 में उनकी मृत्यु हो गई। साहित्यकार तब तक 36 में अदसिर ईरानी ने पहली बोलती फिल्म बनाई थी, 1931 में आलम आरा। 36 में उन्होंने पहली, अदसिर ईरानी ने ही पहली रंगीन फिल्म भी बना दी। इंदर जी, आपको बीच बीच में बोलने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो बोल ही रहा हूं।
छत्तीस में उन्होंने रंगीन फिल्म बनाई किसान कन्या, और कमाल बात यह है कि नेहरू जी ने 35 में एक फिल्म देविका रानी की आई, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म अछूत कन्या। नेहरू जी ने देविका रानी को चिट्ठी लिखकर उनकी प्रशंसा की कि मुझे ये फिल्म बहुत अच्छी लगी, आपने कमाल काम किया। लेकिन वही नेहरू जी ने 39 में जब कॉन्फ्रेंस हुआ तो उन्होंने कहा कि भारतीय सिनेमा में सिनेमा का स्तर ठीक नहीं है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। किसान कन्या के बारे में कुछ नहीं बताया उन्होंने, पहली रंगीन फिल्म अदसिर रानी की, कुछ नहीं बोला। लेकिन चूंकि देविका रानी उनको अच्छी लगी थी तो उन्होंने चिट्ठी लिखी। खैर, बहुत बड़े नेता थे, शायद जब देविका रानी की प्रशंसा की थी तो बहुत से कलाकारों का मनोबल बढ़ा होगा। लेकिन अगर किसान कन्या की भी तारीफ करते, और भी उन दिनों फिल्में बनी थी, तो और मनोबल बढ़ता सिनेमा वालों का। साहित्यकार रुके नहीं। मुंशी जी के बाद उपेंद्र नाथ अश्क भी चलकर मुंबई गए और वो काफी सालों तक थे, लेकिन वो सेट नहीं हो पा रहे थे। वो जद्दोजहद में थे, पूरे वातावरण को देख रहे थे, पूरे कार्य प्रणाली को आंक रहे थे, भांप रहे थे। 1949 में उपेंद्र नाथ अश्क जी ने एक नाटक लिखा और नाटक का नाम था मशकेबाजों का स्वर्ग। शीर्षक पे ध्यान दीजिए, मशकेबाजों का स्वर्ग। इंदर जी, जी जी सुन रहा हूं भाई साहब, बिल्कुल। मशकेबाजों का स्वर्ग। जी। इस नाटक के नाम से ही सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, और उसमें उन्होंने लिखा कि ये मशकेबाजों का स्वर्ग है, जो मस्का लगाता है उसी के लिए है ये जगह। जो साफ बोलता है, जो कुछ साफ करना चाहता है, उसके लिए नहीं है ये। लेकिन ये 1920 से 1947 तक का जो काल रहा, वो साहित्य और सिनेमा का काफी मिलन हुआ। शरद चंद्र जी के उपन्यास देवदास पे 1935 में ही मूक फिल्म बनाई बरुआ जी ने। के.एल. सहगल साहब ने उसमें गाना गाया। फिर उन्होंने दूसरी फिल्म बनाई जिसमें के.एल. सहगल साहब को उन्होंने लिया, और वो भी फिल्म, ये सब फिल्म बहुत ही चली, बहुत ही सफल रही। बिमल राय जी उसमें सिनेमाटोग्राफर थे। बरुआ जी के देवदास में बिमल राय जी फोटोग्राफर थे। जब बिमल राय जी की बारी आई फिल्म बनाने की तो 1955 में उनको लगा कि देवदास को फिर से बनाना चाहिए, और उन्होंने देवदास को ही चुना फिल्म बनाने के लिए। उसके पहले तमिल में, तेलुगु में, हर भाषा में देवदास बन चुकी थी और सुपरहिट, लोगों ने बहुत पसंद किया। जब बिमल राय जी ने बनाई तो अपनी एक टीम बनाई उन्होंने। नवेंदु घोष को उन्होंने स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए लिया, और उन्होंने फिल्म जब बनाई, दिलीप कुमार से वो रोल करवाया। वैजंती माला और सुचित्रा सेन को हिंदी सिनेमा में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जो बंगाल की बहुत बड़ी अभिनेत्री थी। फिल्म बहुत सफल रही, लोगों ने बहुत पसंद किया, क्योंकि साहित्य का यथारूप फिल्मांकन 1955 में बनाई गई देवदास में थी।
यथारूप। आज की पीढ़ी ने देवदास देखी, भंसाली की देवदास, बड़े बड़े पर्दे, बड़े महल, अट्टालिकाएं। देवदास कलकत्ता में पढ़ रहा था, देवदास ने इन्होंने ब्रिटेन में भेज दिया। वहां से पढ़ के आता है सूटेड बूटेड। देवदास कम और राहुल ज्यादा दिखता है। बहुत अच्छा फिल्म बनी, फिल्म बनी, फिल्म बहुत चली। साहित्य को तोड़ना कोई इनसे सीखे। साहित्य को भी इंटरप्रिटेशन देते हैं ये लोग। क्या बात है। इतिहास को भी इंटरप्रिटेशन देते हैं, इतिहास के चरित्रों को बदल देते हैं। ऐतिहासिक चरित्र, वीर, तलवारबाज, हिम्मतबाज, शौर्यवान, युग पुरुष, और पता चला डांस कर रहा है, भांगड़ा कर रहा है वो हीरोइन के साथ। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है साहित्य पे फिल्म बनाने का। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इतिहास पे फिल्म बनाने का। अगर आप इतिहास पे फिल्म बनाते हैं तो इतिहास की जानकारी होनी चाहिए आपके पास। बहुत सुंदर संदेश सर। उन चरित्रों के सत्य को जानना होगा पहले। जब तक उन चरित्रों के सत्य को नहीं जानिएगा, उन चरित्रों पे क्या फिल्म बनाइएगा। बहुत खूब। जब तक आप साहित्य के अध्यात्म को नहीं जानिएगा, आप साहित्य पे क्या फिल्म बनाइएगा। आज ये हालत हो गई है जी। और हमारी नई पीढ़ी वो तो इसी देवदास को जानती है ना। एक सही, वो तो दिलीप कुमार वाले देवदास को जानती नहीं। खैर, आर के नारायण के उपन्यास पे देवानंद साहब ने फिल्म बनाई, गाइड, अच्छी फिल्म बनी। हालांकि आर के नारायण जी खुश नहीं थे फिल्म को लेकर, जबकि अच्छी फिल्म बनी थी। मन्नू भंडारी, रजनीगंधा बासु चटर्जी ने बनाई, एक्सेलेंट। इस तरह से कई कई फिल्में साहित्य पे बनती चली गई। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों पे कितनी फिल्में बनी। जब सत्यजीत रे जी को हिंदी में फिल्म बनाना था तो उन्होंने प्रेमचंद जी की कहानी सेलेक्ट की, शतरंज के खिलाड़ी। सही। मृणाल सेन को फिल्म बनानी थी तो उन्होंने कफन चूज किया, कफन। होली, कर्मभूमि, अजय मेहरा ने सीरियल बनाया, दूरदर्शन पे रिकॉर्ड ब्रेक किया। सेवा सदन, बहुत काम हुआ प्रेमचंद जी पे। तब लोग प्रेमचंद जी को नहीं समझा था, बाद में समझते चले गए। लेकिन आज वो भी नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि आज तो प्रेमचंद का नाम ही नहीं जानते। बिल्कुल सही भाई। आज की जनरेशन जो फिल्म उद्योग में काम कर रही है उसको प्रेमचंद मालूम ही नहीं है। एक घटना घटी थी पिछले सालों, काफी दिन हो गए, किसी साहब ने किसी टेलीविजन चैनल में प्रेमचंद की कहानियों पे एक सीरियल बनाने के लिए जमा किया था कि भाई सीरियल बनाऊंगा, ऐसे ऐसे पूरा स्क्रिप्ट, पूरा फाइल दिया था। वो 1 महीने के बाद गए, उन्होंने कहा कि भाई मैंने अपना स्क्रिप्ट जमा किया था, फाइल जमा किया था, उसका क्या हुआ। तो उसने कहा कि आपका फाइल बहुत अच्छा है लेकिन आपने, अधूरा है आपका फाइल। कहा कि अधूरा, मैं तो पूरा करके दिया हूं। कहा कि नहीं, आपने राइटर का बायोडाटा नहीं दिया है। तुमने कहा नहीं, राइटर तो प्रेमचंद है। तो कहा सो व्हाट, हूएवर राइटर, वी वांट बायोडाटा। तो ये हालत है। जो लोग काम कर रहे हैं वहां, दे आर द डिसाइडिंग अथॉरिटी, दे डोंट नो हु इज प्रेमचंद। क्या काम होगा साहित्य पे। बहुत सुंदर आकलन।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इटली में एक नियो रेवोल्यूशन, नौ यथार्थवाद का एक रेवोल्यूशन हुआ और उन्होंने वहां के फिल्म मेकर्स ने, चूंकि इटली में फिल्में बहुत अधिक बनती थी और इंडस्ट्री वहां की सिनेमा जगत बहुत उन्नत था, बहुत ही समृद्ध था, वहां के फिल्म मेकर भी बहुत कमाल थे, फेलनी थे, रसोलनी थे, देशिका का प्रभाव बहुत पड़ा। समानांतर सिनेमा, यथार्थ को लेके सिनेमा में आना, ये वहीं से शुरू हुआ। देशिका ने एक फिल्म बनाई थी, आप लोग भी शायद देखे होंगे, बाइसिकल थिप। जी जी जी, बहुत खूब बहुत खूब। पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा दिया था और एक अलग रेवोल्यूशन था वो नौ यथार्थवाद का, और जिसका प्रभाव हमारे फिल्म मेकर्स पर बहुत पड़ा, चाहे वो विमल रॉय थे या वी शांताराम थे या राज कपूर थे, सब पे, या सत्यजीत रे थे या मृणाल सेन थे। यहां तक कि राज कपूर की जो फिल्में हैं, आवारा, श्री 420, अनाड़ी, बूट पॉलिश, ये सब उन्हीं की फिल्मों की कॉपी है। इस सड़क पे घूम रहा एक आदमी, एक ऐसा सा है, समानांतर सिनेमा शुरू हुआ, लेकिन हमारे फिल्म मेकर ये जान चुके थे कि सिनेमा से खूब पैसा आ रहा है, खूब पैसा आता है, लोग खूब देखता है। चल रहा था, कमाल चल रहा था। साहित्यकार भी अपनी कहानियां दे रहे थे, अपने उपन्यास दे रहे थे, लगे हुए थे कि साहित्यकारों को थोड़े पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि साहित्य में पैसा तो है नहीं। साहित्यकारों, आजकल तो और कमाल हो गया, साहित्यकारों की कहानियों की फिल्म बन जाती है, साहित्यकार को पता ही नहीं। चित्रा मुदगल जी की कहानी में फिल्म बन गई, सुपर डुपर हिट हो गई, उनको पता ही नहीं था। सूर्यवाला जी की कहानी पे फिल्म बन गई, सुपर डुपर हिट हो गई, उनको पता ही नहीं था। मनीषा कुलश्रेष्ठा के फिल्म पे कहानी पे फिल्म बन गई, उनको पता ही नहीं था। नागदेवा जी की कहानी पे फिल्म बन गई, उनको पता ही नहीं था। कई साहित्यकार ऐसे हैं। ये हालत कर दी है और कहते हैं नहीं 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 नहीं, उस कहानी पे आधारित नहीं है, हमने अलग इंटरप्रेट किया है, हमने बहुत कुछ चेंज किया है। इतनी क्षमता हो गई कि साहित्य को बदल देते हैं ये लोग। खैर क्षमता तो है ही, इन्होंने जब इतिहास के चरित्रों को बदल देते हैं, इतिहास बदल देते हैं, तो साहित्य को क्यों ना बदले। बहुत खूब। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि दोषी कौन है, जिम्मेवार कौन है? हम ही है ना। वो फिल्में तो हम ही देख रहे हैं, हम ही देख रहे हैं वो फिल्में, हम ही जाके टिकट कटा के वो फिल्में देख रहे हैं और सुपरहिट कर रहे हैं। मतलब एक तरह से परमिशन दे रहे हैं कि आप बनाइए, जैसा मन करे इतिहास बनाइए, जैसा मन करे साहित्य बनाइए। समानांतर सिनेमा को तो हमने प्रमोट ही नहीं किया, यथार्थवाद सिनेमा को, क्योंकि हम देखने ही नहीं जाते थिएटर में। हमारी खुद की फिल्म अंतर्द्वंद, नेशनल अवार्डेड फिल्म, नेशनल अवार्डेड फिल्म, हमारी खुद की फिल्म, और वो फिल्म आज तक किसी सैटेलाइट चैनल पर रिलीज नहीं हुई है। थिएटर में भी बेचारे हमारे दोस्त ही डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के ग्रेजुएट सिनेमाटोग्राफर हैं वो, सुशील राजपाल जी। थिएटर में भी बहुत पुअरली रिलीज हुई, पैसा भी खर्च किया, लेकिन पता ही नहीं चला कब रिलीज हुई, कहां रिलीज हुई।
क्योंकि और रिलीज भी तो हम देखने नहीं जाते, हम तो इंटरेस्टेड ही नहीं है अपने सिनेमा को देखने के लिए। और बातें करते क्या है मालूम है? बड़ी बड़ी बातें होती हैं संस्थाओं में भी, महाविद्यालय विश्वविद्यालयों में भी, विभागों में भी, चर्चाओं में भी, सेमिनारों और वेमिनारों में भी, कि समाज में जो घटित होता है वही सिनेमा में दिखा रहे हैं। समाज का दर्पण है सिनेमा। बताइए कौन सी आजकल फिल्म बनी है जो समाज का दर्पण हो, जो समाज में घट रही हो, समाज का से प्रभावित हो? बल्कि उल्टा हो रहा है, सिनेमा में जो दिखा रहे हैं वही समाज पे प्रभाव पड़ रहा है। सिनेमा का इतना सशक्त प्रभाव हमारे भारतीय समाज पे पड़ा है कि आधी भारतीय समाज पश्चिमी हो गई। पहनावे से, भाषा से, खान पान से, भूषा से। याद रखिए, संस्कृति के 3 स्तंभ हैं, भाषा, भूषा, भोजन। अगर ये 3 बदल गए, ये 3 बदल गए तो संस्कृति खत्म। लेकिन तो हमारे ऋषि मनीषियों, हमारे तपस्वी संतों का आशीर्वाद है इस देश पर, इस जम्बो द्वीप पर, कि जड़ बहुत गहरा है, इतना आसान से नहीं उखड़ेगा, चाहे कोई कुछ भी कर ले। लेकिन प्रश्न ये है कि अगर पता नहीं चल रहा है कि हम कहां जा रहे हैं, तो कम से कम ये तो देख लें कि हम आ कहां से रहे हैं। अगर हमारी पीढ़ियों को यह पता चल जाए कि हम कहां से आ रहे हैं, हमारी संस्कृति कहां से आ रही है, तब भी बहुत कुछ बदल सकता है, रुक सकता है, हो सकता है। याद रखिए, सिर्फ भोजन करना, खाना कहना आहार नहीं है जी। आहार वो भी है जो आंखों से देख रहे हैं, जो कानों से सुन रहे हैं। याद रखिए, नाक से सूंघ रहे हैं, परफ्यूम मार मार के, डिओड्रेंट का एडवर्टाइजमेंट आ रहा है टेलीविजन पे, और खूब खूब खरीद रहे हैं। पूरी दुनिया उजड़ गई, हवा आया इतना कमाल का, आंधी तूफान, पूरी दुनिया उजड़ गई। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से कहती है लेकिन तुम्हारे शरीर का जो डीओ था वो नहीं उड़ा। अब ये एड फिल्म देख के हमारी नई पीढ़ी के बच्चे एकदम उत्साहित हैं, उत्तेजित हैं जी, प्रफुल्लित हैं, और तुरंत मार्केट जाके या अमेजोन पाउडर देके मंगा लिया कि शायद गर्लफ्रेंड खुश हो जाए, या नहीं मिली है तो मिल जाए। जी। पता चला कि डीओ से गर्लफ्रेंड मिल तो गई, लेकिन चरित्र हनन से वही गर्लफ्रेंड भाग जाएगी। याद रखिएगा, अगर चरित्र नहीं है, व्यक्तित्व नहीं है, आचरण नहीं है, विचार नहीं है, संस्कार नहीं है, तो कुछ नहीं होगा। कमाल तो यह है कि हमारी शिक्षा प्रणाली भी कमाल है। अभी अभी फेरबदल शुरू हुआ है। खैर मैं तो पढ़ नहीं पाया हूं जी, क्योंकि मैं कुछ और पढ़ रहा हूं इन दिनों, तो मुझे उतना अभी जानकारी नहीं है। लेकिन हम बच्चों को पढ़ा क्या रहे हैं? रटवा रहे हैं। रट ले, तुम अगर ये रट लोगे तो तुमको 50,000 की नौकरी शुरू हो जाएगी, और तुम अगर ये भी और ये भी दोनों रट लिए तो 1 लाख रुपए का महीना शुरू हो जाएगी, नौकरी पक्की। और तो 50 लाख रुपए डायरेक्ट अगर कैंपस में दे दिया और वहां एडमिशन हो गया तो बच्चे का नौकरी लाइफ सेटल। मां बाप भी जोड़ चेत के 50, 60, 70 लाख रुपए कैंपस में दे के बच्चे को कैंपस में भेज दिया। बच्चे को पता है नौकरी फिक्स है मेरा। वो बच्चे का क्या होगा जीवन में, बताइए? कौन से चरित्र का निर्माण होगा उस बच्चे का? क्या करेगा वो बच्चा इस समाज के लिए?
वो कैंपस कौन सा प्लेसमेंट दे रहा है, इस पर ध्यान देना अधिक आवश्यक है। भारत सरकार को शिक्षा प्रणाली में बहुत कुछ बदलना होगा। पूरा इतिहास बदल दिया गया है, भाषा बदल गई। अब हर जगह पता नहीं क्या मोह माया है कि एक इलीगल भाषा जो 22 भाषाओं में है भी नहीं संविधान में, उसी को सीने से चिपकाए हुए हैं। संविधान जो 22 भाषा की अनुमति देता है उन 22 भाषाओं में शामिल नहीं है, लेकिन सारा कामकाज उन्हीं 22 भाषाओं में हो रहा है। अधिकांश पढ़ाइयां उन्हीं में हो रही है, बच्चे वही बोल रहे हैं और अपने आप को बोल बोल के अत्याधुनिक साबित कर रहे हैं। आधुनिक भी साबित नहीं कर रहे, अत्याधुनिक। संगीत की वही हालत हो गई, बताइए। संगीत की वही हालत हो गई। 1949 में 3 फिल्में बनी थी, अंदाज, महल और बरसात। तीनों फिल्म सुपरहिट थी, तीनों फिल्म सुपरहिट थी और तीनों में एक ही कॉमन स्टार, स्वर कोकिला लता मंगेशकर। तीनों फिल्म के क्या गाने, आज सुनिएगा आप लोग। महल, अंदाज और बरसात के गाने सुनते सुनते मन करेगा कर्ण प्रिय। सुपर डुपर हिट गाने, क्या संगीत, क्या गीत, क्या शायरी, क्या कविताएं, क्या लिरिक्स। आज तो पता ही नहीं चलता लिखा क्या हुआ है, शब्द क्या है। म्यूजिक इतना कोलाहल है, वो संगीत नहीं है, वो कोलाहल है, पता ही नहीं चलता और डिक्लेयर हो जाता है गाना सुपर हिट। अच्छा शब्द प्रयोग, कोलाहल, और बच्चे बड़े खुश हैं। बीस हर्ट्ज से 20,000 मेगा हर्ट्ज तक की कैपेसिटी है इस कान को सुनने की। न तो उसके ऊपर न तो उसके नीचे, कान नहीं सुन सकता। और बच्चे फुल वॉल्यूम में, शो चल रहा है, डिस्को चल रहा है, कंसर्ट हो रहा है, म्यूजिक लगा हुआ है। बड़े बड़े भोंपू, अब तो भोंपू लगता ही नहीं, हमारे जमाने में तो भोंपू लगता था, लाउड स्पीकर। अब तो पता नहीं साउंड सिस्टम 8-8, 10-10 फीट वाला लगता है, बड़ा बड़ा 20-25। पता चला कि 20 लाख का साउंड सिस्टम है। सही बात। क्योंकि म्यूजिक कोलाहल चाहिए, ये कर रहे हैं। क्या सुना रहे हैं हम बच्चों को, क्या दिखा रहे हैं। ओटीटी आया है आजकल। हमने रेलवे में टीटी सुना था, यहां ओटीटी है। ऐसा ऐसा कुछ सामग्री आ रहा है उसमें, और वो मोबाइल है, वो तो हर बच्चे के पॉकेट में है, हर व्यक्ति के पॉकेट में है। कहीं भी घुमा दो, कोने में बैठ जाओ, गार्डन में बैठ जाओ, बिल्डिंग के बेसमेंट में बैठ जाओ, गांव के बगीचे में बैठ जाओ, बाथरूम में बैठ जाओ, कहीं भी लगा के देखते रहो। कौन रोकने वाला है, कितना रोक लीजिएगा। पूरा का पूरा समाज में गंध घोलने में घुसे हुए हैं, पूरा। क्या करिएगा, क्या कर सकते हैं। इसके लिए जिम्मेवार शिक्षा प्रणाली है। शिक्षा प्रणाली पे ध्यान सरकार ने आज तक दिया ही नहीं। ये तो पहली बार हो रहा है कि प्रणाली में बदलाव किया जा रहा है, पहली बार। अब देखें इसका क्या असर पड़ता है।
लेकिन मेरे अनुसार बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता है शिक्षा प्रणाली में। हर विषय सूची में, हर कोर्स में स्कूल से ही चरित्र निर्माण जोड़ना पड़ेगा। चरित्र निर्माण। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हर क्लास में, हर विषय सूची में 2 महापुरुषों के बारे में उनकी जीवनी होनी चाहिए, ताकि बच्चे उनसे प्रेरित हों। सारे महापुरुषों को विषय सूची से निकाल दिया गया है नहीं, सारे वीर योद्धाओं को निकाल दिया गया। क्या करिएगा? गुरुकुल को जला दिया गया। मैकाले आया, अपना शिक्षा प्रणाली लेके आया, प्रण करके आया था, देखने में भारतीय होंगे, काम हमारा करेंगे, ऐसा शिक्षा प्रणाली लागू करूंगा। और आज मैकाले का सपना सत्य होते हुए समाज में दिख रहा है, क्योंकि उसने जो शिक्षा प्रणाली लागू की थी, क्षमा चाहूंगा, वो शिक्षा के लिए थोड़े लागू की थी कि भारतीय शिक्षित हो। वो तो एक दूसरे से हम जो बात कहें वो आम जनता तक पहुंचे, कम्युनिकेट करे, क्लर्क पैदा हो, ऑफिस के काम करे, उस शिक्षा प्रणाली को लागू किया। और वो शिक्षा प्रणाली तब का आज तक चला आ रहा है। अब जाके पहली बार भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री ने और शिक्षा मंत्री ने, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और निशंक जी ने ये प्रयास किया है। अब देखें क्या क्या बदलाव आता है। जब 1957 में विद्रोह हुआ, उसके बाद मैकाले की शिक्षा प्रणाली लागू हुई थी 58 से, 1858 से, क्षमा चाहता हूं, 1900 नहीं, 1858 से, 1857 विद्रोह के बाद, सिपाही विद्रोह के बाद। शिक्षा प्रणाली लागू होने के बाद हुआ, पास मार्क्स क्या रखा जाए, उत्तीर्ण अंक। तो ब्रिटेन में टेलीग्राम गया, उनका चिट्ठी गया कि व्हाट विल बी पास मार्क्स इन इंडिया, वी हैव स्टार्टेड। शिक्षा प्रणाली लागू हो चुका है, अब पास मार्क्स जरा बताइए क्या हो। तो मालूम है वहां से जवाब क्या आया? जवाब आया कि यहां तो पास मार्क्स 65% है, 65%। लेकिन चूंकि जो भारतीय हैं, जो इंडियंस हैं, उनका दिमाग हम ब्रिटिशर से आधा होता है, और ऐसे भी हमें क्लर्क पैदा करना है, जो शिक्षा प्रणाली लागू किया है, तो 65 का आधा कर दो, 32.5, 32.5 रखो। 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 5 सालों तक 32.5% था पास मार्क्स। अब 1.5 का हिसाब समझ में नहीं आया, तो कहा राउंड फिगर करो, तो 33%, 33% किया गया। और तब से आज तक 33 ही चल रहा है, किसी का ध्यान नहीं है। कमाल तो ये है, और कमाल तो ये भी है कि कई सरकारों ने उस 33% में भी आरक्षण दे रखा है।
कमाल ये भी है, वोट बैंकिंग का इतना बड़ा चक्कर है, तो क्या शिक्षा प्रणाली को दोष दें? दोष तो है शिक्षा प्रणाली का। जी। आप लोग सब कोई हवाई जहाज में सफर करते होंगे, आजकल कोरोना चल रहा है तो नहीं कर रहे होंगे। हवाई जहाज पे हमेशा देखा होगा आप लोगों ने, पीछे एक नंबर लिखा रहता है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, VT। जी। VT लिखा रहता है और उसके बाद कुछ अंक लिखे रहते हैं, डिजिट्स। वो हर देश का, हर कंट्री का रजिस्ट्रेशन होता है एयरलाइंस का, वो हर देश का, ये अलग अलग एयरलाइंस का नहीं, हर देश के एयरलाइंस का। वो VT क्या है? वायसराय टेरिटरी। वायसराय टेरिटरी, हम वायसराय टेरिटरी हैं, हम देश नहीं है भाई। आज तक हम वायसराय टेरिटरी हैं, उस पर VT लिखा हुआ है, किसी का ध्यान नहीं है। कमाल। देखिए, और जो नहीं देखा होगा हवाई जहाज पे कभी चढ़े तो देख लीजिएगा। सही आकलन विवेचन। बहुत कुछ बदलाव की आवश्यकता है। आजकल तो सेल्फ डिक्लेयर्ड साहित्यकार भी हो गए हैं, मैं साहित्यकार हूं, आज लिखा कल पब्लिश और परसों अवार्ड। ये भी कमाल हो रहा है आजकल। क्योंकि साहित्य में थोड़ी रुचि रखता हूं, एक्टर जीवन भर पढ़ता है, जो नहीं पढ़ता मैं तो उसको एक्टर ही नहीं मानता, क्योंकि एक्टर को पढ़ना ही पढ़ना है। क्योंकि जो भी वो कैरेक्टर करता है, उस कैरेक्टर का सत्व उसको जानना है, उस कैरेक्टर के तत्व को जानना है, उस कैरेक्टर के अध्यात्म को जानना है, उस कैरेक्टर की चमड़ी को जानना है। बहुत बढ़िया। जितना पढ़ेगा वो उतना कम है। ये सारी बातें और भी बहुत सारी बातें हैं। अब किसी को प्रश्न वगैरह पूछना हो तो आप इंदर जी प्रश्न ले सकते हैं। जी। हाँ बिल्कुल। बहुत सारे दर्शक हमारे बीच जुड़े हैं, बहुत सारे प्रश्न जिज्ञासाएं उनकी हैं। आज हमारे मुख्य वक्ता के रूप में भाई अखिलेंद्र मिश्र जी, जिन्होंने साहित्य, सिनेमा, संस्कृति और शिक्षा का क्या अधिष्ठान होना चाहिए, क्या आधार होना चाहिए, इन तमाम बिंदुओं को और विशेष करके चरित्र निर्माण और जो मूल्य आधारित शिक्षा है उसका होना अति अनिवार्य है, इन तमाम बिंदुओं को इस शख्सियत ने हमारे सामने रखा। बहुत सारे प्रश्न हमारे बीच हैं और एक प्रश्न मैं उठा रहा हूं रवि जस्सल जी का। इनका कहना है कि आज अखिलेंद्र जी ने संस्कृति की बात कही, क्योंकि हम जिस प्रकार से आपने एक उदाहरण दिया कि जब हम जड़ को सींचेंगे तभी वृक्ष जो है वो बट वृक्ष में बनेगा। इसका कारण क्या है कि आज संस्कृति और जो हमारे सिद्धांत और जो मूल्य हैं वो हमसे बिछुड़ते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, हमें लौटने का रास्ता शेष नहीं बचा है। इसका क्या कारण है? क्योंकि आप सिने जगत से जुड़े हैं, इस पर आप विशेष टिप्पणी दे तो बड़ा अति आभार रहेगा। नहीं, सवाल समझा ही नहीं मैंने, फिर से सवाल पढ़िए। सवाल संस्कृति से आज सब लोग, हाँ, संस्कृति से लोग दूर होते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति से। इसका जो मूल कारण है वो है कि हम अपने से हट रहे हैं। एक सिने जगत के अभिनेता इसे किस रूप में मानता है? सबसे बड़ा दोष तो शिक्षा प्रणाली का है, क्योंकि पढ़ा ही रहे हैं क्लर्क बनाने के लिए, पढ़ा शिक्षा थोड़ी दे रहे हैं। जी। विद्या ग्रहण की बात तो बहुत दूर
दूर दूर दूर है, शिक्षा ग्रहण भी नहीं करवा रहे हैं, रटवा रहे हैं, तो मूल्य पता कैसे चलेगा? मूल्य तो उसको पता चलता है ना जिसको, जो स्वयं मूल्यवान हो। हमें पहले मूल्यवान बनाना पड़ेगा अपनी पीढ़ियों को। बहुत सुंदर। कुछ अखिलेंद्र सर, कुछ हमारे विद्यार्थी जुड़े हैं, स्टूडेंट्स जुड़े हैं। अच्छा। और उनका प्रश्न है कि आप एक खलनायक के रूप में भी आपको देखते हैं और आप इतने अध्यात्म से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि शिव स्तोत्र से ही आपने अपने कार्यक्रम का आगाज किया। इन दोनों चरित्र को, इन दोनों विभूतियों को आप कैसे अभिनय के साथ जोड़ते हैं, और जो आपका अपना व्यक्तिगत जीवन है वहां आप इन्हें कैसे सम्मेल में रखते हैं, एकत्व में रखते हैं? ये हमारे बच्चे पूछना चाहते हैं आपसे। इस पूरी सृष्टि का मूल अध्यात्म है, पूरी सृष्टि का मूल, और मनुष्य का जो मूल स्वरूप है वो आध्यात्मिक है। पूरा शरीर की बनावट आध्यात्मिक है, पूरा शरीर की, यहां तक कि हमारी भाषा भी, भारतीय भाषाएं अध्यात्म की देन है, ऋषि मुनियों ने बनाई है। जहां तक हम हिंदी की बात करते हैं, हिंदी को छोड़कर अंग्रेजी को अपनाते हैं, मैं एक बात बता दूं कि ध्वनियों के सिंहासन पर बैठी हुई हमारी देव माता, देव भाषा, संस्कृत की बेटी है हिंदी और तमाम भारतीय भाषा। हिंदी में 33 वर्ण हैं, 33 अक्षर जी, और मानव शरीर के रीढ़ में 33 वर्टेब्रा है, 33 जोड़। क्यों 33? 34 या 32 क्यों नहीं? सोचिएगा, जब भी किसी अक्षर का उच्चारण करते हैं एक द्रव्य का स्राव होता है, अलग अलग अक्षर के लिए अलग अलग जोड़ है, याद रखिए। पूरा का पूरा वर्णमाला सांसों पे आधारित है, पूरा का पूरा वर्णमाला। जी। क, एक और प्रश्न। ख, क अंदर गया, क, ख बाहर गया। भगवान श्री कृष्ण ने द्वितीय अध्याय में गीता में 7वां श्लोक क्या है? कार्पण्य दोषम। कार्पण्य दोष क्या है? हम किसी को देते नहीं है, इतने कंजूस हैं। और कंजूसी क्या है? अंदर ही रखना। क का उच्चारण क्या है? पाणिनि ने क्या दिया है आपको? क्या है पाणिनि के व्याकरण में? बिल्कुल सही। पाणिनि के व्याकरण में क क्या है? उन्होंने आपादान को श्रेष्ठ बनाया, संज्ञा सर्वनाम विशेषण को नहीं। पहले नंबर पे उन्होंने संज्ञा को नहीं रखा, सर्वनाम विशेषण को नहीं रखा, आपादान को रखा है। क्यों? दीजिए। क, ख, खग आसमान, बाहर है खुला हुआ, खगोल। ख तो सांस अंदर गया, क, ख, ग अंदर, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ठ, ड, ड, ढ, ढ। हर सांस पे एक एक वर्णमाला है दोस्त। इतनी समृद्ध हमारी भाषा है, हम कहां हैं, क्या कर रहे हैं, किसको पकड़ रहे हैं, किस भाषा को है? ये हमारी भाषा इतनी समृद्ध। बहुत सुंदर। अनुस्वार क्या है? चंद्रबिंदु क्या है? आज हिंदी को रोमन में लिखने लगे हैं। नहीं, हिंदी नहीं आती, रोमन में लिख दो यार। रोमन में? अरे अनुस्वार गायब है। अनुस्वार शांत रूपम बिंदुत्व रूपम नागा संधानम।
चंद्र बिंदु क्या है? चंद्रमा पर हाथ पर शिव हैं और बिंदु आदि शक्ति भगवती त्रिपुर सुंदरी हैं साक्षात। हमारी भाषा इतनी समृद्ध है तो पूरे जीवन का, पूरे जम्बू द्वीप का, पूरी सृष्टि का जो मूल है वह अध्यात्म ही है। और अभिनेता तो ऐसे ही आध्यात्मिक व्यक्तित्व है, और अभिनय जो है आध्यात्मिक साधना है, और नाटक जो है आध्यात्मिक यात्रा है। मिल गया जवाब जी, बहुत सुंदर। और एक अंतिम प्रश्न है, हम चाहते हैं कि बहुत घंटों आपसे बातचीत करते रहे, विमर्श करते रहे। लेजेंड ऑफ भगत सिंह में आपने चंद्रशेखर आजाद का अभिनय किया है। जी जी। और राष्ट्रभक्ति, और कहा भी है कि जिस नागरिक में राष्ट्रभाषा या राष्ट्रभक्ति का जुनून नहीं होता, वो राष्ट्र और वो राष्ट्र का नागरिक गूंगा होता है वास्तव में। इस अनुभव को आप साझा करें कि चंद्रशेखर के अभिनय में आपने राष्ट्रभक्ति के उस जुनून को, उस जज्बे को कैसे जिया। मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं चंद्रशेखर आजाद जी को, और मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि एक अभिनेता के रूप में मुझे उनका किरदार निभाने का मौका मिला। राजकुमार संतोषी जी ने मुझे बुलाया, मुझे वो जिम्मेदारी दी। मैं पहले ना कर चुका था, मैंने कहा मैं ये जिम्मेदारी नहीं ले सकता। अगर मैं नहीं कर पाया, थोड़ी सी भी 19-20 हो गई तो देश की जनता मुझे माफ नहीं करेगी। वो इस देश के रियल हीरो हैं जी, वो रियल हीरो हैं इस देश के। उन्होंने कहा ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप कमाल करेंगे मुझे मालूम है, और आप लगते हैं और ऐसे वैसे। फिर मैंने तैयारी की, मैंने 20 किलो वजन चढ़ाया, क्योंकि आजाद पहलवान की तरह थे, कुश्ती का बड़ा शौक था। वो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बिस्मिल, फणी सबको लड़वाते थे, वो भगवती शरण सबको कुश्ती लड़वाते थे। तो उनको वो शौक था, तो वो तैयारी की, उनकी पूरी सामग्री, लिटरेचर, पूरा साहित्य, पूरी जीवनी, कई किताबें मंगवाई मैंने, उसका अध्ययन शुरू हुआ, पूरी तैयारी की। और अध्ययन के समय ही मैं अपने घर में ही चटाई पे सोना शुरू कर दिया था। मुझे ऐसा लगने लगा, मैं पढ़ता था उनको तो रोने लगा, तैयारी चल रही थी। यहाँ तक कि जब शूटिंग शुरू हुई, मैं पूना गए थे, पुणे में एक होटल था, अभी तो नाम बदल गया है, ब्लू डायमंड 5 स्टार होटल, वहां हम लोग ठहरे हुए थे। लेकिन 5 स्टार होटल में भी मैं बिस्तर पे नहीं सोता था, मैं अपनी दरी लेके गया था, मैं दरी पे ही सोता था। और बिल्कुल मैं उन दिनों मैं किसी दोस्त से नहीं मिला था जब मैं तैयारी कर रहा था और वो रोल कर रहा था। तो मैंने कोई फिल्म नहीं देखी, मेरे घर में टेलीविजन नहीं था, और मैं किसी दोस्त से नहीं मिला, किसी से बात नहीं करता था। मैं सिर्फ उसी में था। जब वो रोल मेरा समाप्त हुआ, उसके बाद कितने दिनों के बाद निकला मैं वहां से, और निकलते 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 निकला, क्योंकि एक एक्टर को निकलना भी पड़ता है कोई किरदार करने के बाद, नहीं तो दूसरा किरदार जब कीजिएगा तो उसका रिफ्लेक्शन आएगा, वो प्रतिबिंबित होगा दूसरे किरदार में भी। तो वो एक तरीका है। तो वो मैंने वो भूमिका की और लोगों ने बहुत पसंद किया। मैं अपनी सभी दर्शकों को शुक्रिया अदा करूंगा कि आजाद के रोल को, किरदार को बहुत पसंद किया, मेरे हर किरदार को पसंद किया। मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस भाषा कला संस्कृति अकादमी के माध्यम से प्रणाम करता हूं सभी दर्शकों को जिन्होंने मेरे हर काम को सराहा और पसंद किया, विशेषकर चंद्रशेखर आजाद को। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मुझे बहुत गर्व है कि मैंने चंद्रशेखर आजाद जी की भूमिका की। हाँ, बहुत एक अंतिम प्रश्न है, क्योंकि समय हमारा समाप्ति को अग्रसर हो रहा है। सभी कह रहे हैं कि बस अखिलेंद्र मिश्र युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? आपके मुखारविंद से युवा पीढ़ी के लिए आज के इस कार्यक्रम का संदेश, भाई अखिलेंद्र जी। धैर्य रखिए, धैर्य धैर्य रखिए, होगा। बेचैन मत होइए कि नहीं हो रहा है यार, नहीं हो रहा, क्या करूं मैं, ये ट्राई करूं क्या, नहीं हो रहा, मैं ये ट्राई नहीं। धैर्य रखिए, जो करना चाहते हैं उसी पे दृष्टि रखिए। ऐसा संकल्प जिसका कोई विकल्प ना हो,
अगर जीवन में सफलता पाना है, सफल होना है, संतुष्ट जीवन पाना है, जीवन जीना है, तो ऐसा संकल्प जिसका कोई विकल्प ना हो, जो सोच लिया कि ये करूंगा वो करिए और वो होगा। याद रखिए, अगर आप विकल्प लेके चलेंगे ये नहीं होगा तो पिताजी का पेट्रोल पंप है वो संभालूंगा, ये नहीं होगा तो बाबूजी का परचून का दुकान है वो संभालूंगा, मैं खेती कर लूंगा, नहीं तो सेक्रेटरिएट में वो मंत्री जी को कह के पिताजी जो है तो नौकरी लगवा देंगे ना, फिर कुछ नहीं होगा जीवन में। ना ना ना, जो आप करना चाहते हैं वो संकल्प पकड़ के रखिए, विकल्प मत रखिए। मैं हमेशा बोलता हूं ऐसा संकल्प जिसका कोई विकल्प ना हो, और मैं शब्दों में नहीं बोल रहा हूं, मैं साक्षात इसका उदाहरण बैठा हुआ हूं। मैंने ये प्रयोग किया है इन शब्दों का, इसके अर्थ का, इसको फलीभूत किया है, इसलिए मैं आप लोगों को पूरे हक के साथ बता रहा हूं। एकाग्रचित्त होइए, एकाग्र रहिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि सफलता की कुंजी एकाग्रचित्त की शक्ति में निहित है। एकाग्र होइए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए अपने ऊपर और फोकस कीजिए अपने टारगेट पे जो पाना चाहते हैं। देयर इज डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस। याद रखिए, अंतर है कॉन्सेंट्रेशन और फोकस में। कॉन्सेंट्रेट अपने ऊपर करना है और फोकस अपने टारगेट के ऊपर रखना है। याद रखिए, जिस टारगेट को पाना चाहते हैं, जिस मछली के तीसरी आंख को भेदना चाहते हैं, तैयारी करते रहिए, बेचैन मत होइए, धैर्य रखिए। कृष्ण आएंगे, कृष्ण आएंगे, पूछेंगे तैयार हो, और कहेंगे अब तो अगर धनुर्धर हो, तुम्हारी पूरी तैयारी है, तो अब मछली की तीसरी आंख पर लगाओ निशाना और वो लगा दीजिएगा। बहुत सुंदर, लेकिन तैयारी रखिए धैर्य के साथ। और एक बात और बताऊं आपको, बातें बहुत हैं जी, लेकिन एक और बात बता देता हूं कि याद रखिए, जिस प्रतिभा के साथ इस सृष्टि में आए हैं, इस दुनिया में आए हैं, उस प्रतिभा का जब तक वो परब्रह्म प्रयोग नहीं कर लेता इस सृष्टि के लिए, इस सृष्टि की सेवा के लिए, तब तक वापस आपको वहां बुलाने वाला नहीं है। इस प्रतिभा को जो दिया है उसका प्रयोग करेगा वो। धैर्य रखिए, जल्दीबाजी मत कीजिए, 2 मिनट नूडल मत बनिए अपने आप को। 2 मिनट नूडल का प्रभाव अपने ऊपर मत पड़ने दीजिए। चरित्र का निर्माण कीजिए। याद रखिए, पहाड़ से गिर जाएंगे आप, हिमालय से, तो उठ के खड़े हो सकते हैं जी, उसका इलाज हो सकता है अगर चोट लग भी गई तो। लेकिन अगर चरित्र एक बार गिर गया तो जीवन में कभी नहीं उठ पाएंगे आप। याद रखिए, चरित्र को पकड़ के रखिए, आचरण को, व्यवहार को, संस्कार को, विचार को। कर्म ही सबसे बड़ा है, कर्म प्रधान सृष्टि है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी तस फल चाखा, होई है वही जो ही राम रचि राखा। लेकिन अनभिज्ञ जो है, अनभिज्ञ कहते हैं होई है वही जो ही राम रचि राखा। अरे राम नहीं रचा है तभी हो रहा है ना, आधा बताते हैं। नहीं, पूरा जानिए, पूरा चौपाई है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, ये विश्व को कर्म प्रधान बनाया है। जो जस करी तस फल चाखा, जो जैसा करेगा वैसा ही फल मिलेगा। होई है वही जो ही राम रचि राखा, उसके बाद है वही वही जो राम रचि राखा। बहुत सुंदर, तो कर्म के संदर्भ में है। बहुत सुंदर। आधा श्लोक मत जोड़िए, सत्यमेव जयते ही बोलते हैं, उसके आगे भी है सत्यमेव जयते ना इतर। सत्य का ही विजय होता है, यही बोलते हैं। सत्यमेव जयते ना इतर, सत्य का ही विजय होता है और सत्य के सिवा और कुछ है ही नहीं। इसका संपूर्ण अर्थ ये है, कुछ है नहीं। सत्य शक्ति है आपकी, आपका वास्तविक स्वरूप है, समझिए। जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर अखिलेंद्र भाई। जिस प्रकार से आपने हमारा मार्ग प्रशस्त किया और आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, पूरा हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश कला भाषा संस्कृति का पूरा परिवार, पदेन अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री, भाषा संस्कृति मंत्री, पूरा परिवार हिमाचल प्रदेश का आपका हृदय से आभार व्यक्त करता है। बहुत कम समय में आपने हमें इतना पहचाना, इतना प्यार दिया, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। क्योंकि मैंने जब आपको बड़े भाई कहा, आपने यही कहा, इंद्र, ये भारतवर्ष है, यहाँ संबंधों में ताकत होती है, रिश्तों में ताकत होती है। क्योंकि जब भी कोई गलत होता है तब भी बोलते भाई क्या गलत किया है, इससे बड़ा आशीर्वाद मेरे लिए क्या हो सकता है, और हम हिमाचल के सभी दर्शकों को क्या हो सकता है। हम बहुत जल्द आपसे फिर मिलेंगे एक अलग कार्यक्रम को लेकर के, नई शिक्षा नीति को लेकर के। भाई अखिलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार, अभिवादन, अभिनंदन, प्रणाम, शुभ रात्रि। प्रणाम करता हूं, प्रणाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज हिमाचल प्रदेश से जुड़ा और जुड़ गया। मैं कांगड़ा, चामुंडा, ज्वाला, चिंतपूर्णी और नैना देवी से ही जुड़ा रहा हमेशा, क्योंकि माँ का भक्त हूं मैं। जो करती है माँ ही करती है। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमो नमः। शुभ रात्रि। धन्यवाद, धन्यवाद। शुभ रात्रि।